ہم جہاد عملی سے شرف جاہ ہوئے، بے عمل ہو گئے تو قصے کوتاہ ہوئے۔ انہی محبتوں سے یہ مطلب بھی آئے کس موڑ پہ کل ہدف آہ ہوئے، آئے کس موڑ پہ کل ہدف آہ ہوئے، وقت کیا بدلا کہ غیروں کے وہ ہمراہ ہوئے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سر کیا بات ہے، بہت کیا کہنے بھائی، واہ وقت کیا بدلا، آئے کس موڑ پہ کل ہدف آہ ہوئے، بے عمل ہو گئے، آئے کس موڑ پہ کل ہدف آہ ہوئے، وقت کا بدلا کہ غیروں کے وہ ہمراہ ہو گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے سر۔ عصر حاضر کی فضا اتنی پراگندہ ہے، عصر حاضر کی فضا اتنی پراگندہ ہے، پارسالوں بھی اس دور میں گمراہ۔ بہت ہی عمدہ، اچھا شعر ہے۔ پاہی کے لیے ہاتھ بڑھے جن کی طرف، خیر پاہی کے لیے ہاتھ بڑھے جن کی طرف، ہائے افسوس وہی لوگ ہی بدخواہ ہوئے۔ پیش کرتا ہوں، کیا کہیں تجھ سے ہم تیری جدائی کیا ہے، کیا کہیں تجھ سے یہ ہم تیری جدائی کیا ہے، چند لمحے کو یہ لگتا ہے کئی ماہ ہوئے۔ کیا کہیں تجھ سے یہ ہم تیری جدائی کیا ہے، چند لمحے کو یہ لگتا ہے کئی ماہ ہوئے۔ شیر کو سماعت فرمائیں۔ دل کے گدائی کا پیالہ ٹھہرے، ہاتھ بزدل کے گدائی کا پیالہ ٹھہرے، معرکہ جیتنے والے ہی فقط شاہ ہوئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بہت شکریہ۔ معرکہ جیتنے والے ہی، معرکہ جیتنے والے ہی فقط شاہ ہوئے، ایسے لوگوں کی بھی تاریخ پڑھی ہے ہم نے، ایسے بھی لوگوں کی تاریخ پڑھی ہے ہم نے، کی بھی تاریخ پڑھی ہے ہم نے، میں کدے سے جو نکل آئے تو گمراہ ہوئے۔ واہ 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 واہ، ایسے لوگوں کی بھی
تاریخ پڑھی ہے ہم نے میں کدے سے جو نکل آئے تو گمراہ ہوئے. بہت شکریہ. یہ شعر بھی سماعت فرمائیں. کون ہے دل کا میرے درد سمجھنے والا, کون ہے دل کا میرے درد سمجھنے والا, میرے اپنے نہ میرے قلب سے آگاہ ہوئے. کیا بات ہے. کے حوالے سے بہت اچھے رضوان صاحب, بہت شکریہ جی. بڑی محبت. جا کے عدالت میں گواہی دے گا. یہ حالات حاضرہ پہ کون اب جا کے عدالت میں گواہی دے گا, ایسے مظلوم کے جو قتل سیرا ہوئے. کیا کہنے ہیں. بہت خوب. کرتا ہوں یہ نوجوان نسل کے لیے ہے, یہی صورتحال ہے. آبلے پڑ گئے پاؤں میں نئی نسلوں کے, آبلے پڑ گئے پاؤں میں نئی نسلوں کے, جا کے دفتر میں تبھی لائق تنخواہ ہوئے. کیا اچھا ہے. واہ 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 واہ. آبلے پڑ گئے, آبلے پڑ گئے پاؤں میں نئی نسلوں کے, جا کے دفتر میں تبھی لائق تنخواہ ہوئے. بہت بڑھیا. کیا بات ہے. بہت شکریہ. اس غزل کا آخری شعر سماعت فرمائیں. جانے کتنوں نے یہاں آ کے بھرا ہے دامن, جانے کتنوں نے یہاں آ کے بھرا ہے دامن, ورنہ کتنے ہی یہاں راندے درگاہ. بہت عمدہ سر. بہت اچھے. پیش کر دوں. جی جی. کون سا جی ہے یہ؟ جائیں گے تھوڑی دیر میں. اختتام ہے. مطلب پیش کرتا ہوں. خدا کو بھول گئے لوگ عزتیں پا کر, خدا کو بھول گئے لوگ عزتیں پا کر, زمانہ دیکھ لے ہم خوش ہیں زحمتیں پا کر. واہ واہ واہ. بطور خاص اور تمام شرکاء اور سامعین کو. تو بنا وقت ضائع کیے میں اپنی 2 نظمیں پڑھوں گی, امید ہے آپ تک پہنچیں گی. بے خبر ہیں حالات سے یوں تیرے جہاں والے, بے خبر ہیں حالات سے یوں تیرے جہاں والے, تنگ فروشی کرتے ہیں شیشے کے مکان والے, واہ واہ واہ. مکان والے, چھپ جائیں اپنے گھر میں جا کے سب رئیس لوگ, چھپ جائیں اپنے گھر میں جا کے سب رئیس, آئے ہیں تقاضے کو کوئی چاک گریباں والے, آئے ہیں چاک گریباں والے, جاتے ہو چمن میں بارہا دیدار گل کو تم, جاتے ہو چمن میں بارہا گل کو تم, بوتے ہیں فصل خار ہر بار گلستاں والے,
होते हैं फसले खार हर बार गुलिस्ता वाले। नया दौर है कीजिएगा महज इशारों में गुफ्तगू, नया दौर है महज इशारों में गुफ्तगू, पेश आते हैं गूंगों की तरह सब यहाँ जुबां वाले। वाह 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 वाह। अच्छा है मीनाक्षी जी, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मीनाक्षी जी। और ये जो मैं शेर पढ़ने जा रही हूँ कोई अपने दिल पे मत लें इसको, इसलिए ऐसा हो गया है कि बैठा हो पहली सफ में जब खामोशियों का मुरीद, बैठा हो पहली सफ में जब खामोशियों का मुरीद, सर पटके न क्या करें अंदाजे बयां वाले। वाह 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 वाह, दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छे, वाह। और पशुपेश में हूँ कि अपनी नजर उठाऊं या कि नहीं, पशुपेश में उठाऊं या नहीं, आमादाए सवाल भी हैं नजरे पशेमा वाले, आमादाए नजरे पशेमा वाले। और एक छोटी सी नज्म आप सबकी पेश नजर है। ए खुदा जिंदगी मुख्तसर दे दे, ए खुदा जिंदगी मुख्तसर दे दे, मंजिलों को मेरी एक सफर दे दे, ए खुदा जिंदगी मुख्तसर दे दे, मंजिलों को मेरी एक सफर दे दे। मैं नहीं मांगता फन जमाने भर के, उससे आशना हो वो नजर दे दे। अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। उससे आशना हो वो नजर दे दे, तख्त ताज का मैं नहीं कायल, फकत दुआओं में मेरी असर दे दे। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, दुआओं में दे दे। आबे चश्मा मुझे दे या कि न दे, आबे चश्मा मुझे दे या कि न दे, दर्द गैर देखें वो दीदाए तर दे दे। वाह 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 वाह, अच्छा है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, वाह वाह मीनाक्षी जी, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया मैम। आखिरी शेर पढ़ती हूँ कि आबे चश्मा मुझे दे या कि न दे, दर्द गैर देखें वो दीदाए तर दे दे, इस उम्मीद से जीने का हौसला दे दे, जाने कब मौत की कोई खबर दे दे। बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत दे दे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत एक अच्छा, नज्म वाह और वाह, सुना दीजिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक नज्म मीनाक्षी जी और सुना दीजिए, आपने सिर्फ 3 मिनट लिए हैं। जी मैं एक नज्म और पढ़ती हूँ। अभी किसी ने अदालत की बात की थी पहले, लामे रिजवान साहब ने, कि आदमी सितम हाय दौरान से डर जाता है। अच्छा, आदमी हाय दौरान से डर जाता है, वक्त जैसा भी हो जब कि गुजर जाता है। आदमी दौरान से डर जाता है। अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर, बहुत शुक्रिया साहब। तुम क्यों शाम ढले घर से निकल जाते हो, तुम क्यों शाम ढले घर से निकल जाते हो, हर परिंदा भी देखो शाम ढले घर जाता है। वाह परिंदा भी, क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दौरे मुंसिफ है कर ले गुनाह हम भी कोई, कि दौरे मुंसिफ है कर ले गुनाह हम भी कोई, है गवाह अंधे जुर्म मासूम के सर जाता है। क्या अच्छा, मासूम के सर जाता है। आगाज़ सफर देखिए मुश्किलों का ख्याल न था उसे, आगाज़ सफर मुश्किलों का ख्याल न था उसे, लौट के बीच राह मेरा रहबर जाता है, लौट के मेरा रहबर जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत 3 नज़में आपने सुनाई। आपने मुशायरे में जो नज्म का पहलू आमतौर से कम होता है उसे आपने पूरा किया और मुशायरे को मुकम्मल किया, समझिए आप। अब मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ वो मैं खुद हूँ, अजीज नबील नाम है मेरा। क्या बात, पहली बार सुना ये नाम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आदाब। मेरी 2-3 उर्दू में शायरी की 2-3 किताबें आ चुकी हैं। सदर महफिल की इजाजत से मैं कुछ शेर अपने सुनाना चाहता हूँ। सदर साहब इजाजत चाहता हूँ आपसे। बड़ी मोहब्बत अता फरमाएं। जी, मतलब पेश कर रहा हूँ मैं कि खामोशी टूटेगी आवाज का पत्थर भी तो हो। वाह, खामोशी टूटेगी आवाज का पत्थर भी तो हो, आवाज का पत्थर भी तो हो,
जिस कदर शोर है अंदर कभी बाहर भी तो हो। अच्छा है, वाह वाह, बहुत क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। कि खामोशी टूटेगी आवाज का पत्थर भी तो हो। जिस कदर शोर है अंदर कभी बाहर भी तो हो। बुझ चुके रास्ते सन्नाटा हुआ रात ढली। बुझ चुके रास्ते सन्नाटा हुआ रात ढली। लौट कर हम भी चले जाएं मगर घर भी तो हो। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, शुक्रिया। लौट कर हम भी चले जाएं, लौट कर हम भी चले जाएं मगर घर भी तो हो। क्या और बात उस दिलों से मैं कोई मारे का जीतूं भी तो क्या। उस दिलों से मैं कोई दिलों से मैं कोई मार का जीतूं भी तो क्या। कोई लश्कर मेरी हिम्मत के बराबर भी तो हो। क्या कहने अजीज भाई, वाह वाह वाह, कोई लश्कर, कोई लश्कर मेरी हिम्मत के बराबर भी तो हो। और मुस्कुराना किसे अच्छा नहीं लगता यार। अब मुस्कुराना किसे अच्छा नहीं लगता यार। है कि मुस्कुराना किसे अच्छा नहीं लगता यार। अब मुस्कुराने का कोई लम्हा मैसर भी तो हो। अच्छा है कोई लम्हा। अच्छा है, शुक्रिया। मुस्कुराने का कोई लम्हा मैसर भी तो हो। और 2-3 शेर सुनिए गजल से कि बेसबब ही कभी आवाज लगाओ तो सही। बेसबब ही कभी सही आवाज लगाओ तो सही। अपने होने का कुछ एहसास दिलाओ तो सही। वाह वाह वाह। और बतौर खास ये शेर मैं सदर मोहतरम की नजर करता हूँ कि सांस लेता हुआ हर रंग नजर आएगा। सांस लेता हुआ हर रंग नजर आएगा। तुम किसी रोज मेरे रंग में आओ तो सही। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या कहने, वाह 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 वाह। तुम किसी रोज मेरे रंग में आओ तो सही। हौसला है तो जजीरा भी तुम्हारा होगा। जजीरा भी तुम्हारा होगा। हौसला है तो जजीरा भी तुम्हारा होगा। खौफ की कश्तियां साहिल पे जलाओ तो सही। अच्छा शेर हुआ है। बहुत शुक्रिया। खौफ की कश्तियां साहिल पे जलाओ तो सही। कश्तियां साहिल पे जलाओ तो सही। एक थोड़ा अलग तरह से शेर कहने की कोशिश की है, जरा बतौर खास देखिएगा कि ताकि फिर रात की तस्वीर उतारी जाए। ताकि फिर रात की तस्वीर उतारी जाए। ताकि फिर रात की तस्वीर उतारी जाए। इन चिरागों को जरा देर बुझाओ तो सही। क्या बात है, वाह वाह वाह, अच्छा है, क्या बात है, अच्छा है, वाह। शुक्रिया। जिंदगी जिस्म के बाहर भी दिखाई दे कभी। जिंदगी जिस्म के बाहर भी दिखाई दे कभी। कोई हंगामा सरे राह उठाओ तो सही। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। कोई हंगामा सरे राह उठाओ तो सही। और मेरी मिट्टी में मोहब्बत ही मोहब्बत है नबील। मेरी मिट्टी में मोहब्बत ही मोहब्बत है नबील। मोहब्बत ही मोहब्बत है। मेरी मिट्टी में मोहब्बत ही मोहब्बत है नबील। छू के देखो तो सही, हाथ लगाओ तो सही। शुक्रिया। छू के देखो तो सही, हाथ लगाओ तो सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, मैं हाजिर कर रहा हूँ। 2-3 शेर और मैं सुना रहा हूँ कि कुछ देर तक सदाएं लगाकर चले गए। कुछ देर तक सदाएं लगाकर चले गए। कुछ देर तक सदाएं लगाकर चले गए। हम खुद से बाहर आए और आकर चले गए। अच्छा है। हम खुद से बाहर आए और आकर चले गए। और वो रात ऐसी सख्त उदासी की रात थी। वो रात ऐसी सख्त उदासी की रात थी।
وہ رات ایسی سخت اداسی کی رات تھی، جلتے چراغ خود کو بجھا کر چلے گئے. کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ. بہت شکریہ، شکریہ صاحب، شکریہ. وہ رات ایسی سخت اداسی کی رات تھی، چکرا رہی ہے سینہ خالی میں ایک چیخ، یہ کون لوگ ہم کو ہنسا کر چلے گئے. واہ کیا کہنے، واہ واہ واہ. بہت بہت شکریہ صاحب، بڑا مہین شعر، بڑا باریک کام. بہت بہت شکریہ. کچھ دیر تک صدائیں لگا کر چلے گئے، ہم خود سے باہر آئے. وہ رات ایسی سخت اداسی کی رات تھی، وہ رات ایسی سخت اداسی کی وہ رات ایسی سخت اداسی کی رات تھی، جلتے چراغ خود کو بجھا کر چلے گئے. بہت اچھا، بہت خوب. اس محبت کے لیے میں آپ تمام کا بہت تہ دل کیا سے کہنے، شکر واہ واہ گزار واہ. ہوں. بہت آپ لوگوں نے بہت بہت شکریہ سر، بہت عمدہ. بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کے دور میں اگر خواتین شاعرات کی بات کی جاتی ہے یا ایک فہرست بنتی ہے تو مشہور، معروف اور مقبول شاعرات کی جو فہرست ہوگی اس میں سر نام ایک بہت اہم نام ہے جو آج ہمارے ساتھ ہمارے اس مشاعرے میں شریک ہیں، محترمہ ممتاز نسیم صاحبہ. مجھے ایک شعر ان کا بہت زمانے سے یاد ہے اور میں نے ان سے کئی مشاعروں میں ان سے میں نے کہا بھی یہ شعر سنائیے. وہ شعر میں سناتا ہوں، ایک بہت الگ کیفیت کا شعر ہے وہ. تجھے کیسے علم نہ ہو سکا بڑی دور تک یہ خبر گئی، تجھے کیسے علم نہ ہو سکا بڑی دور تک یہ خبر گئی، تیرے شعر ہی کی یہ شاعرہ تیرے انتظار میں مر گئی. ایسی خوبصورت اور حساس شاعری کرنے والی شاعرہ، بہترین ترنم، بہترین شاعری، بہترین ادائیگی. میں درخواست کر رہا ہوں محترمہ ممتاز نسیم صاحبہ سے کہ اپنا کلام سنائیں. بہت شکریہ، بڑی محبت. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتی ہوں آصف اعظمی صاحب کا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا حصہ مجھے بنایا، اور ویلی آف ورڈز کا یہ جو منچ ہے، اور ہم صدر صاحب سے بھی اجازت لیتے ہیں اور کچھ اشعار آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں. ایک مطلع اور ایک شعر پڑھوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے جو بھی مجھے وقت ملا ہے اس میں کمپلیٹ کرنا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ کچھ شاعری آپ تک ضرور پہنچاؤں. بہت اچھے اچھے اشعار سننے کو مل رہے ہیں اور آگے بھی یہ سلسلہ ایسے ہی خوبصورت چلتا رہے گا. تو میں چاہتی ہوں کہ کچھ شعر میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں کہ چلو مانا تم نے وفاؤں کے میرے سب نشان مٹا دیے. چلو مانا تم نے وفاؤں کے میرے سب نشان مٹا دیے، مگر اس کا مجھ کو یقین نہیں میرے خط بھی تم نے جلا دیے. مانا تم نے وفاؤں کے میرے سب نشان مٹا دیے، مگر اس کا مجھ کو یقین نہیں میرے خط بھی تم نے جلا دیے. اور شعر کے شب زندگی کے اندھیروں میں جو بھٹک رہے ہو تو کیا کروں، شب زندگی کے اندھیروں میں جو بھٹک رہے ہو تو کیا کروں، جو چراغ میں نے جلائے تھے وہ چراغ تم نے بجھا دیے. چراغ میں نے جلائے تھے وہ چراغ تم نے بجھا دیے. اور ایک مطلع اور ایک شعر جو مجھے اچھا لگتا ہے پڑھتی ہوں کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ عشق میں میں نے کھویا کیا مجھے کیا ملا. میں یہ سوچتی ہوں کہ عشق میں نے کھویا کیا مجھے کیا ملا، میری بد نصیبی تو دیکھیے نہ صنم ملا نہ خدا ملا. بد نصیبی تو دیکھیے نہ صنم ملا نہ خدا ملا. اور اسی کا شعر کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے میری جیت ہے کہ یہ مات ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے میری جیت ہے کہ یہ مات ہے. میری رازدار سہیلی سے مجھے تیرے گھر کا پتہ ملا. میری رازدار سہیلی سے مجھے تیرے گھر کا پتہ ملا. اور اب چاہتی ہوں کہ ترنم سے ایک غزل کے کچھ شعر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر کروں اور پھر میرا جو وقت ہے وہ بھی لگتا ہے کہ پورا ہو جائے گا. ایک مطلب اور 2-3 شعر پڑھتی ہوں میں. مطلب بطور خاص، میرے ہم
सफर मेरे इश्क का क्यों मजाक तूने बना दिया। भाई बहुत अच्छा है, बहुत वाह वाह। सफर मेरे इश्क का क्यों मजाक तूने बना दिया। मेरे हम सफर मेरे इश्क का, मेरे हम सफर मेरे इश्क का क्यों मजाक तूने बना दिया। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तूने प्यार का ये सिला दिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। तेरा शुक्रिया तूने प्यार का ये सिला दिया। शेर हाजिर करती हूँ, बहुत उम्दा, आप लोगों तक पहुंचाती हूँ कि अभी रास्ते थे खुले हुए, अभी दूर थी मेरी मंजिलें। अभी रास्ते थे खुले हुए, अभी दूर थी मेरी मंजिलें। मुझे दुख तो है इसी बात का, मुझे रास्ते से हटा दिया। मुझे दुख तो है इसी बात का, मुझे रास्ते से हटा दिया। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ, खूबसूरत शेर है, आप तक पहुंचेगा, मुझे अच्छा लगेगा, हाजिर करती हूँ। मेरा दिन गमों में गुजर गया, मेरी रात अश्कों में ढल गई। मेरा दिन गमों में गुजर गया, मेरी रात अश्कों में ढल गई। मेरे दिल में जिससे थी रोशनी वो चराग तूने बुझा दिया। मेरे दिल में जिससे थी रोशनी। बहुत अच्छा शेर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। इसी बात की है ख्वाहिश मुझे सिर्फ इसका मलाल है। इसी बात की है ख्वाहिश मुझे सिर्फ इसका मलाल है। तूने अपनी खुशियाँ समेट कर मेरा गम हवा में उड़ा दिया। वाह 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 वाह। खुशियाँ समेट कर मेरा गम हवा दिया। और आखिरी शेर पढ़ती हूँ इस गजल का, फिर आप सबसे इजाजत चाहूंगी। तेरे नाम की मेरी धड़कने, तेरे हाथ थी मेरी जिंदगी। तेरे नाम थी मेरी धड़कने, हाथ थी मेरी जिंदगी। ये बता तो दे मेरे जीते जी मुझे खाक में क्यों मिला दिया। वाह 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 वाह, मेरे बहुत खूब, जीते जी मुझे खाक में क्यों मिला दिया। मेरे हम सफर मेरे इश्क का
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत उम्दा। मेरा दिन गमों में गुजर गया, मेरी रात अश्कों में ढल गई, मेरे दिल में जिससे थी रोशनी वो चिराग तुमने बुझा दिया। बहुत खूबसूरत कलाम उस्ताद नसीम साहिबा, बहुत शुक्रिया। वो शेर मुझे याद आ रहा था जब आप पढ़ रही थी, मतलब कि तरन्नुम में शायरी का जो खूबसूरत इम्तिजाज होता है कि खूबसूरत तरन्नुम और खूबसूरत शायरी, वो देखने को मिल रही थी। वो शेर है कि उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। वाह। तो हम आवाज भी देख रहे थे और शायरी भी देख रहे थे। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन, अब हम अमेरिका चलते हैं। अमेरिका से हमारे दरमियान एक बहुत अहम शायर मौजूद हैं, डबल पीएचडी हैं, अमेरिका में रहकर प्रोफेसरी भी करते हैं और शायरी भी करते हैं। पर्वत भी देख आई, उठ उठ के थक गई नजरिया रे, नजरिया रे, वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोरे सवरिया, वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोरे सवरिया, बदरिया रे। अगला बंद पढ़ती हूँ इसका। कजरा लगाऊं तो बह जाए कजरा, कजरा लगाऊं तो बह जाए कजरा, बिंदिया जमाऊं तो गिर जाए बिंदिया, पुरवाई छेड़ करे सर के ना अचरा, लाख सिंगार करूं दम के ना मुखड़ा, खिड़की ना खोलू कभी मुख से ना बोलू कभी, खिड़की ना खोलू कभी मुख से ना बोलू कभी, जाऊं ना घर से बजरिया रे, बजरिया रे, वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोरे सवरिया, वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोरे सवरिया, बदरिया रे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत मोहब्बत, बहुत अच्छे। मैंने उन्हें बुलाने को सोचा तो इरफान सिद्दीकी का एक शेर याद आया कि हमारे दिल को एक आज़ार है ऐसा नहीं लगता, हमारे दिल को एक आज़ार है ऐसा नहीं लगता, कि हम दफ्तर भी जाते हैं गजल खानी भी करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, बहुत अहम शख्सियत अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन अमेरिका के बहुत अहम रुकन और जिम्मेदार और बेहतरीन शायर जनाब डॉक्टर नौशा असरार साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपना कलाम सुनाएं। इस्तकबाल है। बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। और ख़ास तौर से आसिफ आज़मी साहब और दीगर अरकान जो वादी अल्फाज से मुंसलिक हैं कि आपने हमें इस लायक समझा और इस बज़्म में शिरकत का मौका दिया। बड़ी अच्छी बज़्म है और अच्छे अशार सुनने को मिले। सैयद फारूक साहब सदर मुशायरा की इजाज़त। बड़ी मोहब्बत। शायरी का सिलसिला साहब यूं होता है कि जब दिल के दरीदा दामन में कोई फूल कहीं खिल जाता है, जब दिल के दरीदा दामन में कोई फूल खिल जाता है, या कोई हंसी कांटा चुभ कर जख्मों से लहू बरसाता है, वाह 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 वाह, फन यूं दिल का तार बजाते हैं, होती है लहू पे एक जुम्बिश, कोई शेर जुबां पर आता है। जब दिल के दरीदा दामन में कोई फूल कहीं खिल जाता है, या कोई हंसी कांटा चुभ कर जख्मों से लहू बरसाता है, तब ज़ौक़ सुखन और जज्बे फन यूं दिल का तार बजाते हैं, होती है लबों पे एक जुम्बिश, कोई शेर जुबां पर आता है। और गज़ल शेर पेश करता हूँ, एक मतला और चंद अशआर। दिल से हुए अशआर सुनाओ तो बने, दिल से निकले हुए अशआर
सुनाओ तो बने, चरागों में लहू अपना जलाओ तो बने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और हूर और गुलमा महो अफलाक की बातें कब तक, गुलमा महो अफलाक की बातें कब तक, जो नजर आए वो तस्वीर बनाओ तो बने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। और फूल ही फूल हो गुलशन में जरूरी तो नहीं। अच्छा, फूल ही फूल हो गुलशन में जरूरी तो नहीं। सुर्खिए लब से कोई बाग सजा हो तो बने। क्या बात है, वाह 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 वाह, का फकत नाम नहीं, तिश्नगी प्यास बुझाने का फकत नाम नहीं, तिश्नगी में कोई जमजम सा बहा हो तो बने। बढ़िया ख्याल है। नहीं, तिश्नगी में कोई जमजम सा बहा हो तो बने, और नफरतों से नहीं होता कभी नफरत का इलाज। अच्छा है, बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये खास तौर से आजकल के माहौल में बहुत जरूरी है कि नफरतों से नहीं होता कभी नफरत का इलाज। दुश्मने जान को भी सीने से लगाओ तो बने। बहुत अच्छा, अच्छी बात, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और मेरी आवाज है सहरा में सदाओं जैसी, मेरी आवाज है सहरा में सदाओं जैसी, मेरी आवाज से आवाज मिलाओ तो बने। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत। मैं एक नज्म पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है दिल। जी, और उससे पहले मैं एक दोहा पेश करूंगा। मैं थोड़ा हिंदी में भी शायरी करता हूँ, तो मैंने एक दोहा कहा है, और दोहा उर्दू शायरी में भी काफ़ी मशहूर है। अफसोस का मकाम यह है कि दोहा जो एक बड़ी अच्छी सिन्फ शायरी थी, उसको हिंदी वालों ने भी छोड़ दिया है और उर्दू वालों ने भी छोड़ दिया है, जबकि ये बड़ा मजबूत और बहुत ही अच्छी शायरी का एक जरिया था। एक करता हूँ, उसके बाद फिर एक नज्म। मैंने कहा है कि काबा, काशी, यरूशलेम, हरिद्वार कोई जाए, काबा, काशी, यरूशलेम, हरिद्वार कोई जाए, मन का द्वार जो खोलिए हरि दर्शन हो जाए। वाह 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 वाह। मन का द्वार जो खोलिए हरि दर्शन हो जाए। और नज्म दिल, ये जरूरी इसलिए था कि आजकल के दौर में मैं ये देख रहा हूँ, बहुत ही शिद्दत के साथ मैं महसूस किया कि हम सिर्फ अपने जहन का, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं और दिल को बिल्कुल किनारे रख दिया है। दिल का कहीं पे इस्तेमाल ही नहीं होता है। बेशक बेशक। इंसान की जिंदगी में अक्ल से ज्यादा दिल की अहमियत है, और अगर इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी में दिल को इस्तेमाल ज्यादा करे, अपनी अक्ल पर फौकियत दे, तो वो एक बहुत कामयाब इंसान हो सकता है, वो एक बहुत कामयाब समाज बन सकता है, और वो एक बहुत कामयाब मुल्क बन सकता है। बहुत उम्दा। आप पढ़ता हूँ, दिल क्या है, दिल क्यों है, दिल कैसा, क्यों ऐसा, दिल रास्ता, दिल मंजिल, दिल तन्हा, दिल महफिल, दिल धड़क धड़क कर क्या बोले, ये उड़ने को क्यों पर तोले, दिल धड़क धड़क कर क्या बोले, ये उड़ने को क्यों पर तोले, सुलगे दहके हौले हौले, डोले मचले ले हिचकोले, ये जेर कफस भी मुंह खोले, जैसे कि पपीहा पी बोले, ये सौदाई ये फरियाद
आबादी, हर आन ये मांगे आजादी, ये झूमे जैसे आवारा, ये गाए जैसे बंजारा। भाई बहुत उम्दा, बहुत सुभान उम्दा, अल्लाह, वाह 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 वाह, वाह, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। आवारा दिल बंजारा, दिल तररम तारा, जब ज़हनो नजर पे हूँ पहरे, दिल ने आँखों का काम किया। अच्छा है, क्या बढ़िया है। दिल ने दिल को पैगाम दिया। अच्छा है, अच्छा है। रोक सकी दुनिया दिल को, जब रोग लगा दिल का दिल को, जब महव तमाशाई थी खैरत, दिल ने बढ़कर दिल थाम लिया। दिल रीत न जाने दुनिया की, दिल प्रीत न माने दुनिया की, दिल की दुनिया दुनिया सच सच, दिल का रिश्ता रिश्ता सच सच, इसमें इंसान जीता सच सच, हंसता रोता गाता सच सच, दिल से है रंग बहारों में, दिल फूल खिलाए खारों में, दिल से है रंग बहारों में, दिल फूल खिलाए खारों में, वो जब्त के खूं के घोंट पिए, वो जोश के अपनी जान दे दे, ये अक्ल खरद का है मारा, ये जोश जुनू का गहवारा। बहुत उम्दा। और ये बंद पेश करता हूँ, गौर से सुनिएगा कि दिल जाए खुदा, दिल राह खुदा, दिल है खुदा, दिल सा है खुदा। दिल जाए खुदा, दिल राह खुदा, दिल में है खुदा, दिल सा है खुदा। ना तेरा खुदा ना मेरा खुदा है, मैंने सुना दिल का है खुदा। अच्छा है, अच्छा है। क्या कहें, वो दिल दाता उसका है फकत दिल से नाता, जिसने भी दिल से याद किया, उसने उसको आबाद किया। क्या जिन्शर क्या बहरोबर, क्या शम्स व कमर, हत्ता के शजर, सब उसकी इबादत करते हैं, कुरान में है ये साफ लिखा। वाह। मैंने अपने दिल से पूछा, ओ यार मेरे एक बात बता, मैंने अपने से पूछा, ओ यार मेरे एक बात बता, ये शम्स व कमर, ये बहरोबर, ये पंख पखेरु और शजर किस तरह इबादत करते हैं, क्या उनका अकीदा क्या फिरका, किस तरह इबादत करते हैं, क्या उनका अकीदा क्या फिरका, क्या वो भी सजदे करते हैं, क्या वो भी शंख बजाते हैं, क्या वो भी शम्मा जलाते हैं। दिल बोला ओ भोले बादशाह, क्या तुमको नहीं इतना भी पता, दिल बोला ओ भोले बादशाह, क्या तुमको नहीं इतना भी पता, दिल का दाता वो दिल दाता, उसका है फकत दिल से नाता, दिल का आशिक दिल का खालिक, दिल का मालिक वो दिलदार। नहीं, बहुत क्या उम्दा नज़्म हुई सर। वाह 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 आपने भाई, वाह वाह वाह। और अब आखिरी बंद सुनिए। इश्क़ मोहब्बत मेहर वफा, ताज़ीम अख़ुवत का दरिया। गौर से सुनिएगा और अल्फाज गिनिए कि दिल मोहब्बत मेहर वफा, ताज़ीम अख़ुवत का दरिया, दुनिया के ये सारे जुर्म जफा हैं ज़हन खिरद के परवरदार। दिल की आंखों से जब देखो हर इंसान में तुम रब देखो, सब उसकी इबादत करते हैं, पाया है सभी ने हुक्म खुदा। ये मैं कोई बात नहीं कह रहा हूँ, जो कहा गया है, अल्लाह ने जो कहा है वही मैं भी कह रहा हूँ कि सब उसकी इबादत इताअत करते हैं, पाया है सभी ने हुक्म खुदा।
अंदाज अलग वो रब जाने, अल्फाज अलग वो रब जाने, वो मुल्क है वो मालिक है, वो हादी है वो खालिक है, इंसाफ तो वो फरमाएगा, जो बेहतर है वो पाएगा, है काम हमारा प्यार करे, क्यों आपस में तकरार करे, है काम हमारा प्यार करे, क्यों आपस में तकरार करे, दिल का दरवाजा तंग न कर, क्यों रंग में भंग ये जंग न कर, दिल का दरवाजा तंग न कर, क्यों जंग न कर, दिल प्रीत के गीत का एक तारा, दिल सुकून का चौबारा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। एक समा बांध दिया डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। दिल बंजारा, दिल ना की सोचो, दिल क्या माइक के पास थोड़ा सा आ सकते हैं? दिल माइक के पास जी। दिल को सोचो, दिल नाजुक है, दिल बेचारा, दिल फूल पे शबनम का कतरा। वाह, तो पारा क्या कहने, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, कमाल साहब, दिल को जगा दिया। समा बांध दिया आपने डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आपने तरन्नुम में भी सुनाया और वैसे भी सुनाया, बेहतरीन खूबसूरत कलाम। वो शेर भी याद आ रहा था आपका कलाम सुनते हुए कि धड़कनों को रोक कर सुनने लगे, धड़कनों को रोक कर सुनने लगे, इस कदर उसका कलाम अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। आइए साहब, दिल नवाज नशा, जिसका ताल्लुक हसास लोगों से ज्यादा है। वो लोग जो हसास नहीं होते उनको शायरी रास नहीं आती। बेशक। और ये हसास लोग हमारे समाज के हर तबके में पाए जाते हैं। उसके लिए कोई खास कोई पैमाना नहीं है कि सिर्फ ऐसे लोग हसास होते हैं और उन्हें ही शायरी पसंद आती है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ पवन कुमार जी की, जो एक IAS ऑफिसर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में भाषा विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, लेकिन साथ ही साथ शायरी और साहित्य और अदब से बहुत खास ताल्लुक और बहुत खास शगफ रखते हैं। और ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं आज पहली बार उन्हें सुनूंगा। और हालांकि उनकी शोहरत बहुत पहले आ चुकी थी। एक शेर उनकी नजर करता हूं मैं, अजब लहजा है उसकी गुफ्तगू का, अजब लहजा है उसकी गुफ्तगू का, गजल जैसी ज़बान वो बोलता है। मैं निहायत अदब से पवन कुमार जी से दरखास्त कर रहा हूं कि अपना कलाम सुनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया नबील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वैल्यू ऑफ वर्ड्स। संजीव चोपड़ा सर और बहुत खूबसूरत मिले नौशाद सर साहब को, रिजवान सर के हो, मीनाक्षी के हो साहब। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज का मसला है कुछ। आप तो चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है। वक्त में आप स्क्रीन पर भी नहीं हैं और आवाज भी ब्रेक हो रही है आपकी। जुनू में रेत को यूं ही नहीं निचोड़ा था। और शेर देखिए, कहता हूं कि फिर उसके बाद तो आंखों से नींद गायब थी, फिर उसके बाद तो आंखों से नींद गायब थी, फिर उसके बाद तो आंखों से नींद गायब थी, किसी ख्याल ने एहसास को झिझोड़ा था। क्या बात है, वाह वाह। फिर उसके बाद तो आंखों से नींद गायब थी, किसी ख्याल ने एहसास को झिझोड़ा था।
और वजूद रखना था अपनी शिनाख्त खोकर भी। ये जो क्या हमारी बात है, वाह 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 वाह, वजूद रखना था। ये हमारी दो मोहतरमा शायर यहाँ बैठी हुई, मीनाक्षी जी और मुमताज नासिम मैम। शेर देखिए, कहता हूँ कि वजूद रखना था अपनी शिनाख्त खोकर भी, नदी ने खुद को समंदर की सिमत मोड़ा था। वाह 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 वाह, बहुत वजूद अच्छा, रखना था, वजूद रखना फिर गायब हो गए जी। फिर वाईफाई को पता चल गया शेर सुना रहे पवन साहब। सुनाने नहीं देगा ये आपका वाईफाई। सदर साहब को ही आना पड़ेगा अब। कहने की कोशिश की है जी, कि जुनू में रेत को यूं ही नहीं निचोड़ा था, किसी की प्यास ज्यादा थी, पानी थोड़ा था, और बिखर गए थे मेरे गिर्द ये दर्द के सिक्के। हाँ। बिखर गए थे मेरे गिर्द दर्द के सिक्के, बिखर गए थे मेरे गिर्द दर्द के सिक्के, तुम्हारी याद की गुल्लक को रात तोड़ा था। भाई वाह 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 वाह, भाई बहुत अच्छी, भाई वाह 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 वाह। किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे। अच्छा है, वाह 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 वाह। किसी ने रखा है, किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे, और कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला करना, कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला करना, क्या गिला करना, यहाँ तो चांद भी पेश आया तमतमा के मुझे। वाह वाह, भाई वाह वाह, भाई वाह वाह वाह, भाई वाह वाह। कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला करना, यहाँ तो चांद भी पेश आया तमतमा के मुझे। किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे। और अजीत साहब एक बतौर खास एक शेर आपके कि किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे, और उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूँ। उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूँ, वही जो छोड़ गया चाक पे घुमा के मुझे। वाह 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 वाह, अच्छा है भाई, बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा। फंस गए। उसी की याद के बर्तन आता हूँ, आईना दिखा के मुझे लग रहा है। आप चले जाते हैं बीच में। मैम मैं तो कोशिश करता हूँ कि रहूं, कुछ तकनीकी चीजें होती मुझे लगता है। क्या मेरी आवाज आप कुछ सुन पा रहे हैं अजीत साहब? जी जी बिल्कुल इरशाद। तो एक जो शेर में पढ़ रहा था कि उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूँ, वही जो छोड़ गया चाक पे घुमा के मुझे। हम सारा दिन नहाए हैं धूप में। तो इस तरह से समझिए कि ये वादी अल्फाज में एक बाग जिसमें तरह तरह के फूल यहाँ पर आसिफ आजमी ने और संजीव चोपड़ा साहब ने सजाए थे, और सदर मुशायरा जनाब डॉक्टर सैयद फारूक साहब की सदारत में एक बहुत खूबसूरत और यादगार मुशायरा हुआ। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। आइए अब हम चलते हैं सदर मुशायरा से दरख्वास्त करने
میں جب ڈاکٹر سید فاروق صاحب جب بھی دلی جاتا ہوں تو ان سے ملاقات ہو ہی جاتی ہے کسی تقریب میں، کبھی میں ان کے دولت کدے پہ بھی حاضری ہو جاتی ہے. نہایت ملنسار، خاکسار، مشفق، مہربان اور بہت ہی نفیس شخصیت. خدا دنیا میں ایسے بہت کم لوگوں کی تخلیق کرتا ہے کہ جن کو دیکھتے ہی سر تعظیم سے جھک جاتا ہے. ایسی ہی ایک شخصیت ہیں ڈاکٹر سید فاروق صاحب. مشہور میڈیکل سائنٹسٹ ہیں اور دلی میں اور اطراف میں ہونے والی ہر طرح کی سماجی، علمی، ادبی، تعلیمی سرگرمیوں کی سرپرستی فرماتے رہتے ہیں. میں آپ سے احمد فراز کے اس شعر کے ساتھ درخواست کروں گا کہ منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا، منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا، بات کر تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا. میں نہایت احترام سے ڈاکٹر سید فاروق صاحب سے درخواست کرتا ہوں. بڑی محبت، بڑی کرم فرمائی، اور میں سبھی حضرات کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور سے سنجیو صاحب کو اور آصف اعظمی صاحب کو، کہ ان حالات میں یہ مشاعرہ انہوں نے قائم کیا اس شعر کے ساتھ کہ وہ ہمارے گھر نہیں آتے، ہم ان کے گھر نہیں جاتے. آج کل کرونا ہے، اس سے تعلقات مر نہیں جاتے. کیا بات. واہ واہ واہ. تعلقات کو قائم رکھنا یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی، اور اس کے لیے جو بھی طریقے ہوں، جب ہوائیں سازگار ہوں گی تو میں بناؤں گا آشیانہ. جب ہوائیں سازگار ہوں گی تو میں بناؤں گا آشیانہ. یہ کیا کہا تو نے پست فطرت، یہ کیا تخیل ہے بزدلانہ. ادھر ہو یورش بجلیوں کی، ادھر حوادث کا تازیانہ. مزہ تو جب ہے انہی فضاؤں میں ہو مرتب تیرا آشیانہ. ان فضاؤں کے اندر، ان حالات کے اندر یہ مشاعرہ کرنا، یہ بہت ہی ایک محبت کا پیغام ہے. اور ہم سبھی جو یہاں پر شاعر حضرات موجود ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس دور میں جو ہے خاص طور سے بالخصوص ایک مثبت شاعری، جو پازیٹیو شاعری ہے، اس کو پیش کیا جائے. اور آج کے مشاعرے میں جن بھی حضرات نے کلام پڑھا ہے، وہ ایک مثبت شاعری، ایک پازیٹیو شاعری کا اس کے اندر تذکرہ ہے. اور میں یہ ہے کہ اب یہ مشاعرہ جب بھی شائع ہوگا تو یہ دیوالی کے قریب ہوگا. تو میں اس شعر کے ساتھ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ محبتوں کے اجالوں کی زندگی کم ہے، چراغ جلاؤ کہ ابھی روشنی کم ہے. ابھی اور روشنی کی ضرورت ہے، ابھی اور ایسی دلسوز گفتگو کی ضرورت ہے جو دل سے متعلق اسرار صاحب نے شاعری کی ہے. بہت ہی عمدہ، بہت بہترین آپ کی شاعری تھی، اور ایسی گفتگو کی ضرورت ہے آج کل. مجھے جب آپ پڑھ رہے تھے ایک شعر یاد آ رہا تھا، ایک واقعہ جس کو شعر میں تبدیل کیا گیا، کہ میرا جو ہیں وہ بھکت تھیں کرشن جی کی، سب لوگ جانتے ہیں. لیکن جب وہ درگاہ گئیں اجمیر شریف، تو انہوں نے وہاں ایک صدا لگائی کہ اونچی ڈیڑھی مرے خواجہ کی، منہ سے چڑھو نہ اترو جائے، کہیو مورے خواجہ سے میری بیاں پکڑ لے جائے. کہتے یہ ہیں کہ ایک ہاتھ نمودار ہوا اور ان کو اوپر لے گیا. تو یہ ہم لوگوں کی تہذیب ہے. دیکھیے کرونا میں ہم لوگوں کو ایک خاص پیغام یہ ملا ہے کہ یہ سب محبتیں جو ہیں، اور جو ہم لوگوں کی ایک وراثت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے کام آنا. ہر بڑا چھوٹا آدمی جو جس کی جیسی مدد کر سکتا تھا اس نے وہ کی ہے. راشن بانٹے گئے اور ہر طرح سے ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کی. تو یہ اس لیے ہے کہ ہمارے ملک کی یہ تہذیب ہے کہ ہم لوگ جب ایک دوسرے کی
काम आने की कोशिश करते हैं तो मिल जाते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा करते हैं। हमारे यहाँ की तहजीब है जो कहीं और नहीं मिलती, जिस तरह से कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए, कोई रुखसत हो जाए इस दुनिया से, तो खड़े हो जाते हैं। उसका जब जनाजा जाता है तो वहाँ खड़े होके हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ ना करें। अगर उसके साथ भी 2 कदम ना चले इंसान तो वो जरूर रिस्पेक्ट पे करता है। एक शेर है कि जब उठाओ मेरी मैयत माफ कर देना मुझे, है सफर मेरा तुम्हें नाहक परेशान कर दिया। तो जो शुक्रगुजार लोग, जो शुक्रगुजार लोग हैं, तुम्हें नाहक परेशान कर दिया, वाह वाह, जो शुक्रगुजार लोग हैं वो जरूर एक दूसरे की शुक्रगुजार रहते हैं और मोहब्बत से इस मुल्क को संवारने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है हालात हमारे मुल्क के हैं। वरना जो है ये बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पर इस तरह के मशायरे हों और उस ज़बान से हम ताल्लुक़ जोड़ के रखें जो गुफ्तगू में भी मोहब्बत बांटती है। एक शेर है कि ताल्लुकात अगर टूटने की जिद कर लें, ताल्लुकात अगर टूटने की जिद कर लें, जरा सा लहजा बदलने से टूट जाते हैं। और यही जबान है कि वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली तो वही बोले जिसे उर्दू आए। तो उर्दू, हिंदी, ये सब हिंदवी जबान है जो हम सब लोग बोलते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जब ये जबान तश्कील की गई, जब ये बनाई गई, लिखी गई, तो उस वक्त में कोई नई लिपि नहीं लाए। एक तो यही जो अरबी फारसी की लिपि थी, पढ़े लिखे लोग वही थे, या संस्कृत वाले लोग थे। तो उर्दू या हिंदी को कोई नई लिपि नहीं मिली, वो वही लिपि मिली जो कि उस वक्त में रस्मुल खत मौजूद था, जो लोग वहाँ थे। बस ये अल्फाज जो हैं वो ऐसे इकट्ठे किए गए जो आदमी मोहब्बत से बोल सके और एक दूसरे को अपनी बात मोहब्बत से कह सके। ये कौन जा रहा है महक छोड़ता हुआ, महसूस हो रहा है कि उर्दू सफर में है। तो ये उर्दू की खुसूसियत है और उसकी नज़ीर जो है आज हम लोगों ने इस मुशायरे में देखी है। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और वक्त की कमी है, इसकी वजह से शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि कुछ हम भी बनाएं तेरे बिगड़े हुए काम। ये इस पर हम सबको बड़ी मुस्तैदी से ये समझना है कि कुछ हम भी बनाएं तेरे बिगड़े हुए काम, ए खाके वतन तुझसे बने हैं हम भी। बहुत शुक्रिया, बड़ी करम और बड़ी मोहब्बत और सबको बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छी शायरी सुनने को मिली। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। दिल की गुफ्तगू, मोहब्बत की गुफ्तगू, तहजीब, तमद्दुन और सकाफत की गुफ्तगू आपने की। हमारे दरमियान, हमारे माशरे में, हमारे समाज में डॉक्टर सैयद फारूक साहब जैसी शख्सियात एक अनमोल ख़जाना है, जिनके लिए मैं दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तवील उम्र दे, सेहत व सलामती के साथ। उनकी गुफ्तगू सुनते हुए गालिब का शेर याद आया कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में था। बहुत अच्छा। जब दिल से गुफ्तगू होती है तो दिल तक बात पहुंचती है और यूं लगता है कि हमारे दिल की ही गुफ्तगू हो रही है। तो आज का मुशायरा दिल का मुशायरा था। आप तमाम को बहुत मुबारक हो, बहुत शानदार मुशायरा। मैं वैली ऑफ वर्ड्स यानी वादी अल्फाज के संजीव चोपड़ा जी, उनकी पूरी टीम और ख़ास तौर पर आसिफ आज़मी साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं, और आप तमाम शोरा का भी तहे दिल से शुक्रिया कि इस मुशायरे का आप लोग हिस्सा बने और बहुत खूबसूरती से अपना बेहतरीन कलाम यहाँ पर पेश किया।
کرتا ہے سازے دل کا ہر ایک تار شکریہ، کرتا ہے سازے دل کا ہر ایک تار شکریہ، 100 طرح سے آپ کا 100 بار شکریہ۔ بہت اچھا ہے بھائی، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت اچھا نبیل، بڑے اچھے، بہت شکریہ، جی آپ تمام کا بہت شکریہ، بہت شاندار پروگرام ہوا۔ اگر آصف اعظمی صاحب آ سکتے ہوں تو آ جائیں، وہ بھی اگر کچھ کہنا چاہیں تو خیر۔ بہت شکریہ، میرے خیال میں ہمیں کلوز کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔